In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, very good morning, guys and girls. And today's class is a special one because we are going to have a bit of practice of very important, crispy, crunchy sentences, which are, of course, used in day-to-day conversations. We have selected 100 sentences which are beneficial to the optimum for everybody in life. You are actually meeting people, you are leaving people, you are apologizing, you are saying thanks to people. So there are lots of situations you have to interact on daily basis. So we are going to practice the important sentences which are spoken in different situations, and with your assistance, I'll be just teaching you guys and girls. I'll give you each one a separate unit and set of sentences. You will let me know about them, and then I will explain further how to pronounce this word, and we'll have a bit of practice class today. So thank you very much. I hope you will enjoy this class very much. And guys and girls who haven't subscribed our YouTube channel, Genius Institute, or the one you're watching right now, please do subscribe it. And this is the only favor you can do us, and this is the only sport which is really important for us. God bless you. Thank you very much, everybody, and stay blessed. So here you go, guys and girls. We are going to start today's class. It's going to be very interesting, and everybody has been assigned a certain unit in which there are sentences which are spoken in day-to-day conversations. So here you go. It's your first. Greeting and introduction. Now it's about greetings and introduction, जिसमें दुआ सलाम और तारुफ के लिए आप sentences बोलते हैं. जी. Hi, how are you? Yes, great. Hi, how are you? How are you जो है इसको एक ही आपने word बोलना है. जैसे it's only one word. There are 3 words. लेकिन कनेक्टेड स्पीच जो होती है उसमें आप देखते हैं कि गोरे आपको इस तरह से कहते हुए सुनाई देती हैं. हाउ आर यू, हाय, हाउ आर यू, राइट. Nice to meet you. नाइस टू मीट यू है, जो टी है ना, टी नहीं बोलते, टी यू. नाइस टू मीट यू, मीट चे की साउंड देते हैं अगर आप सुने गौर से. नाइस टू मीट यू. What's up? व्हाट्सअप. No, कहते नहीं, it's not WhatsApp, it's a दूसरी कॉल है जो सिम कॉल है. नहीं, that's not WhatsApp. ये what is up means what's going on. What's up? What are you doing right now? What's up? क्या चल रहा है, जैसे हम कहते हैं ना, क्या चल रहा है. So what's up? Okay. Good to see you. Oh, good to see you. Good to see you. अच्छा लगा आपसे मिलके. अच्छे लगे हो तुम, सो हमने कह दिया. नुकसान ये हुआ कि तुम मगरूर हो गए. सो किसी को अच्छा कहना भी बड़ी बाज़ गले पड़ सकती है ये चीज. जी. Long time no see. लॉन्ग ये भी होता है, बहुत अरसा हो चुका है आपसे मुलाकात नहीं हुई, आपसे मिलना नहीं हुआ. लॉन्ग टाइम नो सी. अच्छा, ग्रामेटिकली सीम्स वेरी डिफरेंट, कि ग्रामर के एतबार से लगता है जैसे अजीब सा है, लेकिन इन स्पोकन इंग्लिश लॉन्ग टाइम नो सी मीन्स इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव सीन यू. How's everything going? जी. हाउस एवरीथिंग गोइंग, सब कुछ कैसा चल रहा है. मीन वही व्हाट्सअप, हाउस एवरीथिंग गोइंग एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा है कि सब कुछ कैसा चल रहा, हालात कैसे हैं, वाकयात, सब कुछ कैसा सीक्वेंस है आपका जिंदगी का. सो हाउस एवरीथिंग गोइंग. गोइंग अगर आखिर वाला जी है उसको आप साइलेंट करेंगे. हाउस एवरीथिंग गोइंग, राइट. How's your day been? हाउस योर डे. हाउ हैज योर डे बिन. तो हाउ हैज को हाउस योर डे बिन. हाउ हैज योर डे बिन, कैसा रहा आपका दिन, सारा दिन जो आपने गुजारा है वो कैसा रहा आपका. जी. I hope you are doing well. आई होप यू आर डूइंग वेल. डूइंग वेल मीन्स कि आप ठीक हैं, अच्छे भले हैं, चंगे भले हैं, मतलब ठीक हैं. आई होप यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग ग्रेट. Please meet. अब ये किसी का तारुफ करवाने के लिए होता है. प्लीज मीट माई ब्रदर.
Ellen. Please meet my sister Jessica. Right? वैसे आयशा हो सकती है. Please meet my bestie, my buddy Usman Irfan. Right? कोई इस तरह से आप प्लीज मीट, उसके बाद आप बताएं, तारुफ करवा रहे, किसी का तारुफ करवाते हुए आप ऐसे बोलते हैं, प्लीज मीट. Welcome to. किसी जगह पर आपने वेलकम टू जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर, वेलकम टू माय हाउस, राइट. आप अपने घर के बारे में कहते हैं वेलकम टू वेलकम टू रेस्टोरेंट. वो 4 रेस्टोरेंट ओपनिंग हुई है उसकी. Yes. बहुत कौन कौन किसका है वो? Astrology and Dicky भाई. फजूल है वो सारे उनका, जो फजूल लोगों का है. Okay, that's great. Thank you very much. थैंक यू. Very nice. Good performance from your side. Really appreciate you. The next one, please. डेली एक्टिविटीज. हमारा next जो chapter है या next जो unit है, उसका topic है daily activities. रोजमर्रा के काम या मामूलात. जी. आई एम गेटिंग रेडी फॉर वर्क. आप जब काम के लिए तैयार हो रहे होते हैं, I'm getting ready for work. I'm getting ready for work, not work. I'm getting ready for work. काम के लिए तैयार हो रहा हूँ या हो रही हूँ. आई नीड टू मेक अ फोन कॉल. I need to make a phone call. अब आप बताते डेली एक्टिविटीज है ना, तो मुझे अब कॉल करने की जरूरत है. कुछ I need to make a phone call, right? लेट्स ग्रैब अ कॉफी. Let's grab a coffee. आप जा रहे हैं तो आप रास्ते में चलते हुए अगर कोई कॉफी शॉप आई है तो आप कहते हैं let's grab a coffee. Means आए वहां से कॉफी लेते हैं. Grab a coffee. डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर टुडे? Do you have any plans for today? क्या आज के कोई प्लान्स हैं, आपके मंसूबे हैं, क्या करना है, आज का क्या प्लान है आपका? Right. Do you have any plans for today? आई एम हेडिंग टू द मार्केट. I'm heading means कितना? Heading to means going to the market. I'm heading to the market. Market की तरफ जा रही हूँ, ये जा रहा हूँ मैं. आई विल डू द डिशेस लेटर. I'll do the dishes. Do the dishes होता है बर्तन साफ करना. I'll do the dishes later. अब वैसे भी मैंने पता है कपड़े पहन लिए हैं, मेकअप कर लिया है. अब जब वैसे तैयार हो जाते हैं किसी से बात नहीं करती हूँ, आप कहते कपड़े धो लें, बर्तन धो लें. कितनी अजीब बात है जी. व्हाट्स फॉर डिनर? What's for dinner? आज डिनर के लिए. What's for lunch? What's for dinner? डिनर के लिए क्या है आज के लिए? और सबसे घर का जो सबसे रिवायती सवाल होता है वो ये होता है आज की पकाई है. ओ माय गॉड. और सबसे ज्यादा परेशान कुल लम्हा होता है जब किसी से पूछ लिया जाए और बता नहीं सकता उसको. तो मैंने तो ऐसे किया है, एक लिस्ट बना दी है 30 डिशेस की. मैंने कहा इसमें से कोई एक सिलेक्ट करते हैं और रिवाइज ना करें उसको. कोई चीज अगर इसमें से आप पसंद है और चाहिए आपको तो मुझे बता दें, मैं आपको, तो मुझसे नहीं पूछना, जो पका मैं खा लूंगा. और राइट, हस्बैंड्स अक्सर जो है वो ऐसे ही कहते हैं और वाइफ्स पूछना नहीं बंद होती हैं उनसे. जी. कैन यू स्विच ऑन द लाइट? स्विच ऑन द लाइट. स्विच ऑन जलाना. वो वाला जलाना नहीं कि मैंने नई गाड़ी ली, उसकी पोस्ट लगाई तो तुम कितने जले हो ना. राइट. सो वैसे तो शो ऑफ करना नहीं चाहिए. एक हमारे दोस्त ने अमेरिका में चले गए हैं तो उनकी पोस्ट थी, एक बहुत रेंज रोवर गाड़ी की तस्वीर उन्होंने लगाई. उन्होंने कहा सॉरी, आप सोचते होंगे कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ. मैं बिल्कुल शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ. मुझे सुर्ख वाइट कलर की थी वो, तो मुझे सुर्ख रंग की चेयर्स चाहिए थी, लेकिन मुझे मिली वाइट कलर की हैं. अच्छा, उस साइड पर चेयर्स भी पड़ी हुई थी उसमें ना, उस तस्वीर में जहाँ रेंज रोवर गाड़ी थी साथ ही कुछ चेयर्स पड़ी हुई थी वाइट कलर की. तो उसी का असल में मुझे कुर्सियाँ चाहिए थी वाइट रेड कलर की, तो फिर वाइट ही मिली थी. मैंने कहा चले आपको दिखा देता हूँ कि ये तो समझ रहे हैं ना बात को आप. मैं अभी आपको दिखा भी सकता हूँ. Indirectly show. So it will be, sorry, but I can't show you right now because my mobile phone is on work. Right. So next क्या है जी? Let's take a break. Let's take a break. आओ जरा थोड़ी ब्रेक लेते हैं. Let's take a break. Take a break. Let's mean let us. Let's और let me को कहते हैं let me. Let me take the break. मुझे वक्फा दो थोड़ा. मुझे इतना तंग ना करो प्लीज. लेट्स टेक अ ब्रेक लेते हैं. नेक्स्ट जी. Time to go to bed. टाइम टू गो टू बेड.
वक्त आ गया है बेड पे जाने का, बिकॉज यू कांट से आई स्लीप एट 10 o'clock. नहीं, आप नहीं पता कब आई गो टू बेड एट 10 o'clock. स्लीप पता नहीं फिर उसके बाद कब आती है, बात को तो तारे गिनते ही आपको रात गुजर जाती है. वैसे अब ये मौसम नहीं है तारे गिनने वाला, और ये माहौल और ये आजकल जमाना भी तारों वाला नहीं रह गया. वो बाहर सोते थे चारपाइयां लगा के बड़े, तो अजीब उसका एक खास मजा था, लुत्फ था. लेकिन अब जो है वो आपको बेडरूम्स में गुजारा करना पड़ेगा. जी, लेट्स गो टू बेड. टाइम टू गो टू बेड. शाबाश. नेक्स्ट वन जी. Next one is making request. मेकिंग रिक्वेस्ट, दरखास्त वगैरह करते हुए. जी, Could you help me with this? अच्छा, ये कुड यू जो है ना, कुड यू असल में तो होना चाहिए दरखास्त करते कैन यू हो सकता Can था. you? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन कुड यू को इस्तेमाल किया है. कुड यू को कुड यू Could you? कुड यू. अच्छा, ये जो कुड यू है ना, ये इनफैक्ट इसमें अंदर पोलाइटनेस आ गई है, इसके अंदर फॉर्मेलिटी आ गई है. तो मतलब वही कैन वाला ही है, लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर इज्जत का, एहतराम का पहलू मौजूद है. Could you help me with this? क्या इस काम में मेरी मदद कर सकते हैं आप? Of course. जी. Please give me a moment. प्लीज गिव मी. गिव मी को गिव मी. Give me. क्या कह रहा है गिव मी को? Give me. बोलो भाई. Please give me a moment. गिव मी को क्या बोलना है? गिव मी. गिव मी. प्लीज गिव मी अ मोमेंट. अब जो मोमेंट है ना, इसको भी शॉर्ट कर लेते हैं. प्लीज गिव मी अ मो. बस. प्लीज गिव मी अ मो. प्लीज गिव मी अ मो. मो मीन मोमेंट. प्लीज गिव मी अ मो. अच्छा, आप कहते हैं प्लीज गेट असाइड एंड प्लीज गिव मी अ मो. जरा एक साइड तो नजर मैंने थोड़ा टाइम दियो. मैं जरा जो आपकी आई लैशेस और ये कुछ दिखा रही हैं आप, कोई हेयर एक्सटेंशंस, पता नहीं वो होती हैं कि नहीं होती हैं आपके पास. सो या नेल पॉलिश को क्या कहती हैं आप? नेल पेंट्स. और इसको क्या कहते हैं? लिप कलर्स. तो ये चीज़ें जो है वो आप, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू शो टू योर कस्टमर्स, तो आप कहते हैं प्लीज गिव मी अ मो, गेट असाइड एंड गिव मी अ मो, आई विल गेट बैक इन अ मो. मैं 1 मिनट में या 1 लम्हे में वापस आती हूँ. राइट. अच्छा, बात तो ऐसे होता है कि आपको सिचुएशंस बनानी पड़ती हैं अंग्रेजी बोलने के लिए. सिचुएशंस बनानी पड़ती हैं कि यार मैंने जुमला आया है, अब बोलना है तो जरा बना के जरा माहौल बनाया जाए इसका. तो वो आप उसका ना बनाते हैं, माहौल बनाते हैं, तो उसके मुताबिक भी बोलते हैं आप. और ये दिस इज द बेस्ट हैबिट. हम भी ऐसे ही करते थे. कुछ चीज़ें सीखते थे, तो फिर जाके यूनिवर्सिटी में अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हें बोलने की कोशिश भी करते थे. और इस कोशिश के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता हमें फिर ज़्यादा अच्छी होती गई लैंग्वेज भी, और ग्रूमिंग होती गई इस तरह से. यस प्लीज. May I borrow your pen? May I borrow your pen? Yeah, may I seeking permission, taking permission, इजाजत लेते हुए आप कहते हैं. रिक्वेस्ट भी आगे इसके अंदर. Can you repeat that, please? Can you repeat that please? अच्छा, can you repeat that please, या can you say that again? Say that again. Can you say, अच्छा can को फिर could में अगर रिप्लेस करेंगे तो पोलाइटनेस ज्यादा आ जाएगी. मतलब कैन का ही है. कुड पास्ट वैसे होता है, लेकिन कुड को प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. Could you say that again please? Could you say that again please? दोबारा कह सकते हैं आप उसको. Could you speak a bit slower? Could you speak a bit slower? Could you speak a bit louder? थोड़ा ऊंचा बोलो मरो, या थोड़ा आहिस्ता बोलें आप. बाज़ औक़ात आप किसी से दरखास्त करते हैं कि वो थोड़ा आहिस्ता बोले. Would you mind waiting for a minute? हाँ, कितना अच्छा. Would you mind? आप बुरा महसूस नहीं करेंगे थोड़ा इंतजार करना 1 मिनट के लिए. Would you mind? Hello? Would you mind waiting for a moment? ये पढ़ने बोलने वाले जुमले हैं सारे. ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, नेबर्स के साथ, जो घर में मेहमान आए उनके साथ, किसी के साथ भी बात बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ी पोलाइटनेस इसके अंदर. Would you mind waiting for a moment? Please let me know. Please let me know. कहते मुझे भी बताओ ना. Let me को let me. Please let me know. मुझे बताओ. Let me know. Please let me know. मेहरबानी कर मुझे बताइए प्लीज. Can I have some water, please? Can I have some water please? Can I have some water please? क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? जी. Pass me the remote, please. Pass me the remote please. मुझे रिमोट पकड़ा दो. अब ये जो पास होता है ना, बाजू का पास में, अब टेबल पर बैठे हुए खाना खा रहे हैं, आपको पास में द सॉल्ट प्लीज, मुझे थोड़ा नमक पकड़ा दीजिए. पास में द टोमेटो केचप प्लीज. पास मी द रिमोट प्लीज. मुझे रिमोट पकड़ाना जरा.
Could you open the ये door for बजाने me? कहने की बजाय गिव मी द मोबाइल, गिव मी रिमोट प्लीज, तो ये थोड़ा और लगेगा. पास मी द मोबाइल प्लीज, पास मी द रिमोट प्लीज. Could you open the door for me? कहते हाँ मैंने तो सारी आपके लिए दिल के दरवाजे भी खोल दिए. ओह सॉरी. Could you open the doors for me? Could you open the door for me? Could you open the door for me? क्या मेरे दरवाजा खोल सकते हैं आप? अच्छा, जब आप किसी को इज्जत देते हैं, आप कहते हैं पहले आप चले, तो क्या कहते हैं? After you. हाँ, ये नहीं कहना फर्स्ट यू, ये नहीं कहना कि पहले तुसी, नहीं, आप कहना आफ्टर यू. मीन्स आप आगे तशरीफ ले जाएं, मैं आपके पीछे हूँ. आफ्टर यू, आपके बाद. After you. मतलब तुसी पहले, तो बाद मैं छाल मारांगा, पहले तुसी मरो. ओह सॉरी. ओके, पहले आप तशरीफ ले जाइए, आपके बाद मैं जाता हूँ. नेक्स्ट जी. I'm done. शाबाश, थैंक यू वेरी वेरी नाइस. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी जी. नेक्स्ट मंथ आज हमारे इल्म में इजाफा कर रहे हैं आप लोग, और इसी तरह से हमारे व्यूअर्स जो हैं वो सीख रहे हैं लैंग्वेज को जी. Expressing gratitude. एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया अदा करते हुए जी. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच. भी बात करता और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा. थैंक यू सो मच, सो पे स्ट्रेस करना जरा. थैंक यू सो, कैसे बोलना है? Thank you so much. थैंक यू सो मच. ओह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका. I really appreciate it. ये भी एक शुक्रिया अदा करने का अंदाज होता है. आई रियली अप्रिशिएट इट, आई रियली अप्रिशिएट इट. अप्रिशिएट बोलना है, अप्रिशिएट नहीं करना. अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट इट, राइट? ओके, बहुत तारीफ करता हूँ, मतलब बड़ा शुक्रिया आपका अदा करता हूँ. Thanks for your help. थैंक्स फॉर योर हेल्प, आपकी मदद का शुक्रिया. I am grateful for your kindness. I'm grateful mean thankful for your kindness. आपकी काइंडनेस का बहुत शुक्रगुजार हूं मैं, मेहरबानी का. Many thanks to you. Many thanks to you. या very many thanks भी कह लेती हैं. Very many thanks. Hello. Many thanks to you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ये very many thanks. I owe you one. I owe you one का मतलब क्या देखा था आपने? मैं आपका मकरूज हूं, मैं आपका एहसानमंद हूं. राइट. I owe you one. Thanks a ton. Thanks a ton. एक टन शुक्रिया आपका. Thanks a ton. You are a lifesaver. You're a lifesaver. आपने बड़ी मदद की है, किसी की बड़े बरमहल मदद की है, मौके पर मदद की है, और you're a lifesaver. आप तो मेरी जिंदगी बचाने वाले हैं. Much obliged. Much obliged. Much obliged. Obliged, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका. Obliged means thankful. I'm so beholden to you. So very much. I'm much obliged. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका. Thanks a million. किसी ने कहते ना, किसी ने कुबे दूं लत मारी पीछे तो कुब निकल गया. क्या मच ऑब्लाइज्ड. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा कुब शरीफ निकाल दिया आपने जी. थैंक्स अ मिलियन, लाखों शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपका. नेक्स्ट क्या है जी? Apologizing. अपोलोजाइजिंग होता है माजरत करना, माफी मांगना जी. I'm sorry for the inconvenience. I'm sorry for the inconvenience. क्या लफ्ज है? Inconvenience. Inconvenience. मैं ट्रबल जो आपने पैदा की है, परेशानी पैदा की, उसके लिए माजरत करता हूँ. My bad. My bad mean my mistake. आप एक्नॉलेज कर रहे हैं. My bad. I couldn't come to you attend your wedding anniversary. My bad. मैं तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी अटेंड नहीं कर सका, मेरी गलती. बाज़ होता है कि आप किसी की गलती नहीं होते तो भी आप उसमें कहते हैं आप व्हाई यू लेट, कहते हैं आई एक्चुअली यू इन्फॉर्म मी लेट. तो आपने मुझे इन्फॉर्म लेट किया तब लेट आया हूँ. तो कहते नो यू न्यू अबाउट इट लेट बिफोर. आप अब जानते थे पहले से इसके बारे में. सो आप कहते हैं मेरे ते पा दो. माई बैड, ये भी मेरी मिस्टेक है. माई बैड. Please forgive me. प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज. I didn't mean to upset I didn't mean to upset you. Did not go didn't. I didn't mean to upset you. मेरा मतलब आपको परेशान करना नहीं था. My apologies for the delay. My apologies for the delay. लेट होने की वजह से मेरी तरफ से माज़रत कबूल करें. I'm sorry. I missed that. I'm sorry I missed
that. कोई भी एक्टिविटी आपको इनविटेशन वाला होता आप नहीं पहुंचे वहां तक, I'm sorry, I missed that. I hope you are not mad at me. I hope you're not mad at me. आप मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, अफसोस मतलब मैं उम्मीद करता हूँ. Sorry, it was my mistake. Sorry, it was my mistake. Sorry, अफसोस करता हूँ, इज़हार करता हूँ, ये मेरी गलती थी. I deeply regret it. मैं I deeply regretted, मैं अफसोस का इज़हार करता हूँ बड़े गहरे अंदाज से. Pardon me. Pardon me, please. Pardon me, please. Pardon me, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज. जी. The next chapter, next part, please. showing agreement, Showing agreement होता है इत्तेफाक करना किसी से, इत्तेफाक का इजहार करते हुए. I totally agree. I totally agree. Agree है, agree नहीं है, agree. मैं पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूँ आपके साथ. You're absolutely right. You are absolutely right. आप जो भी कह रहे हैं, आप हमारे ग्राहक हैं. आप भी कहा कि वो कोई सस्ता ब्रांड है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. मैं मानती तो नहीं हूँ, लेकिन आप अगर कहते हैं तो you are absolutely right. That makes sense. That makes sense. That makes sense. बात तो समझ में आती है, बात तो दिल को लगती है. I couldn't agree more. मैं क्या और इत्तेफाक करूं आपसे, मतलब पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं. I couldn't agree more मतलब मजीद इत्तेफाक नहीं कर सका, मतलब कर सकता, मतलब पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं आपसे. Exactly. Exactly. Absolutely. That's true. That's true. सच्ची बात कही आपने. You've got a point there. You've got a point there. वाकई आपके पास यहाँ एक पॉइंट है, जो बात है जो करने वाली. I am with you on I'm with this. you on this. इस मामले में मैं आपके साथ हूँ. That's a great idea. That's a great idea. Idea. बहुत अच्छी बात की है आपने. Sounds good to me. Sounds great. Sounds good to me. मुझे अच्छी लगती है बात आपकी. जी. फिर आपकी बारी आ गई जी. Disagreement. We are less the number of students today here in the class, but we'll continue studying about the entire activity. Yes, please. Disagreement. Disagreement, इख्तलाफ जो है वो करते हुए. जी. I don't think so. मेरा नहीं ख्याल ऐसा ही है. अब इख्तलाफ कर रहे हैं ना. आप कहते हैं पाकिस्तान will win the World Cup, will win the Champions Trophy. I don't think so. इख्तलाफ कर रहे हैं, कहते हैं मेरा तो ख्याल नहीं कि इंजन है. जी. I'm afraid I disagree. I'm afraid. I'm Afraid afraid. मतलब डर लगना नहीं है. I'm afraid मतलब इधर सॉरी की सेंस में है. I'm afraid I disagree. मुझे अफसोस है, मैं डिसएग्री करता हूँ, आपके और से इत्तेफाक नहीं करता. That's not how I see it. ये ऐसा नहीं कि जैसे मैं देखता हूँ इसको, मतलब मैं इसको इस तरह से नहीं देखता. That's not how I see it. मतलब मेरी नजर में ये बात ऐसे नहीं है. That's not how I see it. जी. I beg to differ. I beg to differ. मैं इजाजत चाहता हूँ आपसे इख्तलाफ करने की. जी. I'm not so sure about I'm that. not so sure about that. मुझे इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा यकीन नहीं है, पुख्ता यकीन नहीं है. I see your point, but मैं आपकी बात तो समझता हूँ, बट के बाद आप डिसएग्री करना चाह रहे हैं, राइट? let's agree to disagree. लेट्स एग्री टू डिसएग्री. आओ एग्री करते डिसएग्री करने के लिए. मतलब ये है, मतलब और लेट्स डिसएग्री मतलब ये है, लेट्स एग्री टू डिसएग्री. आओ इत्तेफाक करते हैं इख्तलाफ करने के लिए. मतलब ये आई डिसएग्री, राइट? I have a different opinion. मेरी एक राय मुख्तलिफ है जी. आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. Not necessarily. नॉट नेसेसरली, लाजमी तौर पर ऐसी बात नहीं है. I doubt that. आई डाउट दैट. अभी आप इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं. आई डाउट दैट. मुझे इस बात पे शक है. जैसे आप फरमा रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे शक है इस बात पर. शाबाश. Expressing emotion. एक्सप्रेसिंग इमोशन, जज्बात का इजहार करते हुए. I'm so happy for you. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. मुझे आपके लिए बहुत खुशी हो रही है मुझे. मतलब यू गॉट एंगेज्ड एंड यू आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक. रियली आई एम सो हैप्पी फॉर यू. That's awesome. या ये भी हो सकता है, you got the job, your dream job. I'm so happy for you. जी. Next. I feel so tired today. I feel so tired today.
आज बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। जी। What a relief. और रिलीफ, क्या आसानी और सहूलत मिली है। व्हाट अ रिलीफ, व्हाट अ रिलीफ। I'm over the moon. बहुत ज्यादा जब आप खुश होते हैं, आप कहते हैं I'm over the moon, मैं बहुत खुश हूँ जी, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, बल्कि I'm feeling under a bit. I'm feeling a bit, Under the weather. I'm feeling a bit under the weather। मैं मौसम के असरात के महसूस करता हूँ, मेरे ऊपर असरात आए हुए हैं। That's disappointing. ये बहुत ही मायूस कुन है। I'm thrilled to hear that. बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के। You scared me. You scared me, आपने मुझे डरा ही दिया था। I'm proud of you. मैं आपसे बहुत फख्र करता हूँ आपके ऊपर, मुझे बड़ा गर्व है आप पर। जी। Asking questions. सवाल वगैरह पूछते हुए मुतफर्रिक हैं सवाल। जी। What you mean? What do you mean? कहता I am very mean। What do you mean? क्या मतलब है आपका? जी। Where are you going? What do you mean? How do you do that? आप ये बात काम कैसे करते हैं? How do you do that? जी। Where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं? Why is that? ऐसा क्यों है? Why is that? Can you explain it to me? Can you explain it to me? क्या आप मेरे लिए इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? Who's coming with us? हमारे साथ कौन आ रहा है? When will you be back? आप कब वापस आएंगे? How much does it cost? How much does it cost? इसके कितने पैसे हैं? ये कितनी कॉस्ट करता है? What's the time? वक्त क्या हुआ है? Could you clarify that? क्या आप इस बात को मुझे क्लियर कर सकते हैं? Giving opinions। जी। Next to you. Giving opinion. राय देते हुए। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। I think it's a great idea. ये अपनी राय दे रहे हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। In my opinion, it's worth a try. मेरी राय में, इन माय ओपिनियन, इट्स वर्थ अ ट्राई, मीन एक ट्राई करना तो बनती है। As far as I am concerned. जहां तक मेरा ताल्लुक है, आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेस आई एम कंसर्न्ड, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। As far as I am concerned, I want to travel abroad as soon as possible। मैं बैरून मुल्क सफर करना चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सकता है। जी। I believe this is the best option. I believe this is the best option। मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छी ऑप्शन है। जी। From my point of view, मेरे point of view से, I'd say it's quite risky. from my point of view, she is deserving। From my point of view, he is really brilliant। जी। I'd say it's quite risky. I'd say it's quite risky। I would say it is, ये काफी रिस्की चीज है, खतरनाक बात है। It doesn't seem right to. It doesn't seem right to me। मुझे ये बात ठीक नहीं लगती। I'm not sure about that. I'm not sure about it। मुझे इसके बारे में यकीन नहीं है। This is just my thought. This is just my thought। ये मेरी सिर्फ सोच है। To be honest, I don't like it. To be honest, सच्ची बात बताऊं, I don't like it। मुझे ये पसंद नहीं है। So thank you very much everybody for giving me 100 sentences which are used in day-to-day conversations। And how's your point of view about it? कैसे sentences थे? कहाँ help कर सकते हैं हमारे, बताइए please। Hello? In daily life, they're very highly conducive। They can be used easily and it's simple language। बात करते आपको चीज आती होती है लेकिन आप उसका प्रैक्टिस नहीं करते तो वो आप उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। एब्सोल्युटली राइटली। तो अभी आपने उसको सीखा भी है, मैंने उसको रिपीट भी किया है, उसके मीनिंग्स भी बताए हैं, कुछ के कॉन्वर्सेशंस बताए हैं कि किस तरह किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। बट इफ यू हैपन टू वर्क रियली वेरी हार्ड टू लर्न दिस ऑल द सेंटेंसेस और इसका प्रैक्टिस करते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, किताब में एक कॉपी बना ली छोटी सी, उसको आप पॉकेट में डाल लें, उस पर लिखे हुए आपने, तो वो इस तरह से आपकी काफ़ी सहूलत होगी उसको याद करना। जब भी कभी टाइम मिले तो आप देख सकते हैं अपनी उस बुकलेट को। उसने कहा था कि वो क्या था कि जब झुकाई नजर देख ली, क्या था, दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जब भी आपके पास ये लिखा हुआ होगा आप उसे पढ़ेंगे तो
आपकी चीज़ें रिपीट करके रिफ्रेश हो जाएंगी और आप आसानी के साथ में यूज़ कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.